Greetings of the day, students. So last time we discussed about variables, how to define a variable, how to assign a value to variable, and how to change their values, what is the scope of variable, etc., etc. And today we are going to talk about constant. Same way, the variables are the ones that change their value throughout the course of the program. Similarly, symbolic constant are the expressions, are some special occurrences which never change their value during a program. Okay, so symbolic constant क्या होता है? It's represent a symbol. वो just एक symbol है. Okay, and इसका काम कैसा होता है? Find and replace जैसा. If you have used Microsoft Word, उसमें जैसे find and replace नाम का फंक्शन होता है, वैसा सेम काम होता है symbolic constant का. Symbolic constant define कैसे करते हैं? हम यूज करते हैं hash define कीवर्ड, hash define preprocessor directive. Preprocessor directive ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं. We have used two preprocessor directives, okay, or one type of preprocessor directive, but two total example of preprocessor directives. Okay, कौन से हैं वो हम देख लेते हैं. हमने कौन से preprocessor directives का example देखा हुआ है? Yeah, just coming back to the point, we have used hash include, only one type of preprocessor directive, but it contains two different files, stdio.h and conio.h. तो एक तरीके से हमने दो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स देखे हैं, stdio.h और conio.h, बस उसकी टाइप एक ही है, हैश इंक्लूड नाम का प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है. दूसरा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हम यहाँ पे देख रहे हैं, हैश डिफाइन. ओके, हैश डिफाइन लिखना है, बाद में सिंबल लिखना है और सिंबल की वैल्यू लिखनी है. तीनों चीजें स्पेस सेपरेटेड है, जैसे कि हैश डिफाइन पाई, और पाई की जो वैल्यू आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम देनी है, तो जनरली हमें पाई की वैल्यू पता है 3.1415 देनी है. फिर हैश डिफाइन, सिंबल का नाम है मैक्स और सिंबल की वैल्यू है 5. हैश डिफाइन प्रिंट, सिंबल का नाम है प्रिंट और उसकी वैल्यू हमें देनी है प्रिंट एफ. यानी कि हर एक स्टेटमेंट में जहां पे भी उसको पाई दिखेगा वहां पे वो वैल्यू उससे रिप्लेस कर देगा 3.1415. जहां पे भी उसको मैक्स दिखेगा वो वैल्यू रिप्लेस कर देगा 5. जहां पे भी उसको प्रिंट दिखेगा वो वैल्यू रिप्लेस कर देगा प्रिंट एफ. ओके, जनरली अपर केस लेटर यूज करते हैं उनको वेरिएबल से डिफरेंशिएट करने के लिए, बट एज वहां पे कुछ भी यूज कर सकते हैं. आई सजेस्ट यू यूज अपर केस लेटर्स, बट you can use any letters. Okay, it's not a rule, it's a convention. एक पुराना कन्वेंशन है, वो रूल नहीं है. जैसे कि हम देख चुके हैं पहले, इफ यू पिक अप योर फोन यू विल जनरली से हेलो, बराबर से, ठीक है, पर वो एक रूल नहीं है. वी जस्ट हैव टू से इट बिकॉज इट्स अ कन्वेंशन. ओके, so as I said before, these symbolic constant are just like find and replace function of any Microsoft Word program. Okay, wherever they'll see pi they'll replace it with this, wherever they'll see max it will replace it with 5, and similarly they can replace even printf and print. So if you don't want to write printf, you just want to write print, so you'll say hash define printf. Okay, so let's see an example of this. So our favorite program is, let's say, finding area of circle, as we have done it before. So I'll say hash define. उसमें कौन सा symbolic constant हम यूज करते हैं? पाई. पाई की वैल्यू क्या होती है? जस्ट अ मिनट. यस, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415. and I'll start defining some other variables that I need. Which variables I'll need? Radius, or R for radius, and then I'll say area. Okay, हम radius की वैल्यू यूजर से ले सकते हैं. अगेन इट विल बी जस्ट अ बिट रिफ्रेश्ड. हम क्या कहते हैं यूजर को? एंटर द वैल्यू ऑफ radius. Okay, enter the value of radius and then we just scan it. Okay, how do we scan it? Percentage f, because we have defined it as float, right, and ampersand r. हमने रेडियस को एज एन आर डिफाइन किया है और उसकी डेटा टाइप फ्लोट है, इसीलिए हम उसकी वैल्यू लेते टाइम क्या लिखेंगे? परसेंटेज एफ. दो वी हैव डन दिस.
right? So I'll just quickly calculate area. एरिया क्या होता है, हमें कौन सी वैल्यू यूज करनी है, पाई इंटू आर, ओके, पाई आर स्क्वायर हो गया, और हम लास्ट में एरिया की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, विल यूज लेट्स से एरिया ऑफ सर्कल इज percentage f, and at place of percentage f we have to print area. Okay, I'll just quickly compile it. There are no errors or warnings, and I'll just quickly run it. Okay, yeah, it is showing me the last defined last run programs output, right? So if you want to remove, I'll just quickly get rid of this, and what I'll use clear screen. So last output को अगर आपको remove करना है तो you should use clear screen. I forgot the clear screen, so it was showing me the last run output. जो मैंने last run किया था प्रोग्राम, उसका output मुझे दिख रहा था, अब वो नहीं दिखेगा। ओके, सो रेडियस की वैल्यू में क्या देता हूँ 4.6, उसके हिसाब से मुझे एरिया ऑफ सर्कल दिख रहा है। फाइन, सो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, हैश डिफाइन पाई यूज किया हुआ है। सो हम यहाँ पे पाई यूज कर रहे हैं। ओके, वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे पाई की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि पाई इज इक्वल्स टू 45, ऐसा मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। तो मैं यहाँ पे पाई इज इक्वल्स टू 45 नहीं लिख सकता, इट विल शो मी एन एरर, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कंपाइल कमांड में। देयर इज एन एरर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके, एल वैल्यू यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ पाई। सो आई जस्ट रिमूव द सेंटेंस। यहाँ पे जो पाई की डेफिनेशन है वो कांस्टेंट है, वो फाइंड एंड रिप्लेस के जैसी है। तो पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी पाई देखेगा वहां पे स्ट्रेट अवे ये वैल्यू रिप्लेस कर देगा। यानी कि ये पूरा प्रोग्राम में अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखें, इफ आई जस्ट कमेंट दिस स्टेटमेंट एंड आई जस्ट यूज 3.1415 here, then both program are same, right? बट अगर हम बार बार पूरे प्रोग्राम में 3.141514 3.14151415 ऐसा लिखेंगे तो हो सकता है कि कहीं पे मिस्टेक हो जाए। सो आई जस्ट सिंपली यूज पाई। सो पाई वैल्यू है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, या फिर अगर आपको इसके आगे की कुछ नंबर्स यूज करने हैं पाई के इस तरीके से, सो इतना बड़ा नंबर आप बार बार प्रोग्राम में नहीं लिख पाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट यूज सिंबॉलिक कांस्टेंट कॉल्ड पाई। उसका काम सिंपल रिप्लेस का ही है। तो मुझे प्रिंटफ और स्कैनफ की जगह पे भी अगर मुझे सिर्फ पी और एस यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, सो वो भी इसको भी वो रिप्लेस कर देगा। सो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, हैश डिफाइन पी हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंटफ के लिए, और हैश डिफाइन एस फॉर स्कैनफ। ये किस चीज का एग्जांपल है कि हैश डिफाइन यानी कि सिंबॉलिक कांस्टेंट है, वो सिर्फ आप कोई भी इंटीजर या फ्लोट वेरिएबल्स के लिए नहीं रख सकते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट आप किसी के लिए भी रख सकते हैं, उनका काम है सिंपल रिप्लेस करना। आपको यहाँ पे सिंबल रखना है, मैंने यहाँ पे कौन सा सिंबल चुना है, पी, और उस पी सिंबल की वैल्यू मुझे क्या रिप्लेस करनी है, प्रिंट एफ। यानी कि मेरे प्रोग्राम में जहां पे भी पी सिंबल्स है वो सारे पी सिंबल्स की वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट करेगा, एज अ प्रिंट एफ। ध्यान रखिए, अगर और कोई भी पी सिंबल है और कोई भी पी वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे मैं कॉमा पी वेरिएबल लेता हूँ, तो इसको भी वो रिप्लेस कर देगा किससे, प्रिंट एफ से। सो हम ऐसे सिंबल लिखेंगे जो रिप्लेस ना हो सके। सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिंपली पी आर लिख देता हूँ और स्कैन एफ को एस से लिख देता हूँ। जनरली ऐसे वेरिएबल्स या ऐसी चीजें प्रोग्राम में रिपीट नहीं होती हैं। सो नॉर्मल सिंगल डिजिट सिंबल या सिंगल कैरेक्टर सिंबल्स हम नहीं लिखेंगे। एडवाइजेबल है कि ना लिखें, ना लिखिए ऐसा नहीं है, रूल नहीं है, एडवाइजेबल है कि ना लिखें क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं, उसको भी रिप्लेस कर देगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मेरा कोई वेरिएबल है पी आर या फिर एस सी, तो पी आर और एस सी वेरिएबल्स को प्रिंटफ और स्कैनफ से रिप्लेस कर देगा सिंपली। ओके, सो आई जस्ट क्विकली कंपाइल दिस। देयर इज वन एरर, व्हाट इज इट, एस आर। ओके, एस आर नहीं है हमारा, शॉर्ट फॉर्म है एस सी। ओके, and I'll quickly run it. Again, it is asking me for radius, so I'll use 6.6, let's say, and it will give me the value, right?
सो सिंबॉलिक कांस्टेंट इंटीजर के लिए भी यूज होता है, फ्लोट के लिए भी यूज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने इंटीजर वाला नहीं किया है पर यहाँ पे एग्जांपल में पीपीटी में है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्स इज इक्वल टू 5 और ये 3.1415 दोनों चीजें हैं, इंटीजर भी है फ्लोट भी है, ठीक है। सो दिस वाज सिंबॉलिक कांस्टेंट। प्रोग्राम में वेरिएबल की तरह कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ती है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके, ध्यान रखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, सिंबॉलिक कांस्टेंट सिर्फ फाइंड और रिप्लेस का काम करते हैं, इसमें मेमोरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, हमें कुछ भी चीज मेमोरी में स्टोर नहीं करनी है, हमें बस जहां पे भी पाई दिखे, मैक्स दिखे या प्रिंट दिखे वहां पे रिस्पेक्टिवली 3.1415 सिर्फ 5 या फिर प्रिंट लिख देना, सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, दीज आर कॉल्ड सिंबॉलिक कांस्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, वेरिएबल्स में उसमें क्या डिफरेंट है, जैसे कि हमने बात की, हम इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हैश डिफाइन से, इंटीजर वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं इस तरीके से। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेरिएबल्स में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसमें सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस होता है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, और किस तरीके से कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग कीवर्ड कॉल्ड const. But before that, I want to talk about this thing, enumerated data type. Okay, so enumerated data type क्या होता है, when you want to define more than one symbolic constant। हमने already symbolic constant just define किए, जैसे कि pi था, printf की जगह पे p था, और etc etc, कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, सबके हम symbolic constant डिफाइन कर सकते हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हमें मोर देन वन सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करने पड़ सकते हैं। जैसे कि एक सिनारियो लेते हैं कि मुझे जो वीक डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अप टू संडे, उनको कोई ना कोई कांस्टेंट के साथ जोड़ना है, जैसे कि 1 2 3 4 5, मैं संडे को 0 कह दूंगा, मंडे को 1 कह दूंगा एंड सो ऑन, ठीक है। और सैटरडे तक हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 5 तक, राइट, 0 2 5 और 6। ओके, उस तरीके से काम करेंगे। सो मुझे इस तरीके से चलना है। ओके, यहाँ संडे 1 से चालू हो रहा है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक सिनारियो है। सो यहाँ तक सैटरडे तक चीजें जा रही है। ओके, सो मुझे टोटल कितने हैश डिफाइन स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। मुझे 7 हैश डिफाइन स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे फॉर एवरी सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफरेंटली। तो ये एन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्या होते हैं, अगर हमें बार बार सिंबॉलिक कांस्टेंट के मतलब स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं तो उसकी जगह पे हम एन्यूमरेटेड डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। इस सिंबॉलिक कांस्टेंट का रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंबॉलिक कांस्टेंट के स्टेटमेंट है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एन्यूमरेटेड डेटा टाइप से। ओके, सो उसका सिंटैक्स क्या है, कीवर्ड लिखेंगे एनम। ओके, ये वॉइड मेन के अंदर आएगा। जो पिछली बार हमने बात की थी, आपने देखा होगा, हमने हैश डिफाइन कहाँ लिखा था, वॉइड मेन के बाहर प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव के साथ, क्योंकि वो प्रोग्राम के पहले प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए उसे प्री प्रोसेसर कहते हैं। ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप कहाँ लिखी जाती है, वॉइड मेन के अंदर। ओके, सो एनिमेटेड डेटा टाइप की बात हम कहाँ करेंगे, वॉइड मेन के अंदर। सो पहले कीवर्ड लिखेंगे एनम, फिर पूरे ग्रुप का नाम देंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में कौन सा ग्रुप का नाम लिया है, वीक। ओके, ग्रुप का नाम है वीक, और उसके अंदर हर एक कांस्टेंट यानी कि सिंबल है उसका नाम और उसकी वैल्यू, वैल्यू है वो ऑप्शनल है, यहाँ पे स्टार कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑप्शनल है। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से वैल्यूज चालू करेगा और हर एक में 1 ऐड करता जाएगा। अगर आप वैल्यू देंगे तो वो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे संडे की वैल्यू 1 दी हुई है तो संडे की वैल्यू 1 रहेगी, मंडे की 2, ट्यूसडे की 3, वेडनेसडे की 4, प्रीवियस से एक ज्यादा करके लेता जाएगा। अगर मैं संडे की वैल्यू यहाँ पे नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट वो संडे की वैल्यू क्या चूज करता, 0 चूज करता। ओके, बट वील सी दैट इन एग्जाम्पल की चीजें कैसे काम करती है। बिफोर दैट जस्ट सी द थियरी पार्ट की क्या है। ओके, इसको कंपेयर भी कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट्स लेके। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं संडे की वैल्यू 1 है, सैटरडे की वैल्यू 7 होगी ऑब्वियसली, तो सैटरडे इज ग्रेटर देन संडे, राइट, क्योंकि वो सिंबॉलिक कांस्टेंट की तरह वैल्यू को जस्ट रिप्लेस करता है। तो सैटरडे किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 7 को, संडे 1 को, तो सैटरडे इज ग्रेटर देन संडे एंड वी कैन कंपेयर देम यूजिंग इफ स्टेटमेंट्स। जिन्होंने लैब सेशंस अटेंड किए थे उनको पता है कि इफ स्टेटमेंट्स हो चुके हैं। Okay, so enum supports different data types as its values, right? काफी सारे डेटा टाइप सपोर्ट करता है, जरूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने बताया था उस चीज में कि हम सिंबॉलिक कांस्टेंट में कि हम क्या यूज करेंगे, इंटीजर या फ्लोट यूज करेंगे, वहां पे हम printf को p भी लिख सकते हैं, pr भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। वो ज्यादा कैटेगराइज्ड है और मैनेज्ड है सिंबॉलिक कांस्टेंट से, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं मोर देन वन सिंबॉलिक कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, in next video we'll see the example of this, just look at this।
Hello, greetings of the day, student. So in continuation with our previous video, we are discussing about enumerated data types. Okay, so what is enumerated data type? It's just an extension of our defined symbolic constant. Okay, so we'll just see an example of it as we discussed in our last video. Yes. Okay, so let's say I want to define pi. So I have defined pi as I need. ओके सो वी डिस्कस द केस कि जहाँ पे मुझे एक वीक के सारे जो डेज हैं उसको मंडे टू लेके संडे तक मुझे उसके साथ कोई ना कोई इंटीजर या फ्लोट कांस्टेंट एसोसिएट करना है या उनके साथ मतलब एक वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स लिखने पड़ रहे हैं डिफाइन वाले? 7। अब एक दूसरा केस अज्यूम करते हैं जिसमें मुझे सारे मंथ के नाम के साथ वैल्यूज एसोसिएट करनी पड़ रही है। तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा? और 12 स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे बिकॉज वी हैव 12 मंथ्स, राइट? सो इंस्टेड ऑफ दैट, जैसे कि वीक के लिए मुझे 7 स्टेटमेंट लिखने पड़े डिफाइन के, वैसे मुझे अगर 7 डिफाइन स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं तो मैं क्या करूंगा? उस डिफाइन स्टेटमेंट को या बिफोर दैट जस्ट स्मॉल रिमाइंडर कि हम डिफाइन कहाँ लिखते हैं? वॉइड मेन के बाहर। सी वॉइड मेन यहाँ पे है, हमने डिफाइन स्टेटमेंट कहाँ लिखा है? वॉइड मेन के पहले। अभी मेरा वॉइड मेन स्टार्ट नहीं हुआ है, बिफोर वी आर यूजिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट। बट व्हेनेवर यूजिंग एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, तो डेटा टाइप हमेशा कहाँ आती है? वॉइड मेन के इनसाइड आती है। सो वी यूज enumerated data type inside the void main and we use symbolic constant as hash define outside the void main or before the void main. Okay, so अभी मैं मंथ वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? मैं सबसे पहले एनम कीवर्ड लिखूंगा, फिर उसको ग्रुप नेम दूंगा कि पूरा जो ग्रुप है उसका नाम क्या है? मंथ। सो सारे मंथ के नेम्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ओके, सो जुलाई को भी राइट JUL, जून को भी राइट JUN। लेट्स से हम 3 लेटर्स या 3 कैरेक्टर्स ही रखते हैं सब में। ओके, सो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ से स्टार्ट करेगा वैल्यू असाइन करना? 0 से। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ है फिर भी जनवरी की वैल्यू 0 है, फरवरी की 1 है, मार्च की 2 है एंड सो ऑन up to December is 11. But if I define something like this, मैं जनवरी को अगर 1 वैल्यू देता हूँ तो ऑब्वियसली जनवरी की वैल्यू वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से लेना स्टार्ट करेगा। सो दिस इज अ सिंबल एंड दिस इज इट्स वैल्यू। जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यू लाइन में है, इसको मैं इस तरीके से 78, मार्च को मैं 53, सिमिलरली अप्रैल को मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ 88। बट जहां पे मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, जैसे कि मई में अभी तक मैंने वैल्यू नहीं दी है, तो वो प्रीवियस वैल्यू से एक ज्यादा लेगा, यानी कि मई की बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी के लिए क्या होगी? 89 इफ आई हैवंट डिफाइंड। जून की क्या होगी? प्रीवियस से एक ज्यादा, यानी कि मई की 89 है तो जून की 90, जुलाई की 91, अगस्त की 92 एंड सो ऑन। ठीक है, सो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर मुझे जुलाई को कोई और वैल्यू देनी है, लेट्स से हियर। ओके, सो मैंने उसको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है हियर, आई कैन गिव इट दैट। ओके, अगर मुझे यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर वैल्यू देनी है, कैरेक्टर वैल्यू A मैं दे सकता हूँ, कैरेक्टर वैल्यू J मैं दे सकता हूँ, इसको मुझे फ्लोट वैल्यू असाइन करनी है, असाइन कर सकता हूँ। फाइन, सो दीज थिंग्स आर अलाउड। You can just assign any value, any string value, any character value, any integer value. That's totally fine. Okay, so moving forward, ये मैंने एन्यूमरेटेड डेटा टाइप डिफाइन कर लिया दिसंबर तक, पर मुझे अभी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यूज या कोई भी अनइंटेंशनल वैल्यूज नहीं देनी है। सो व्हाट आई जस्ट डू इट, आई जस्ट रिमूव these things. You can try this, okay, whenever you are doing your practical at home, you should try this, giving it a different values and if it's working or not. I have used clear screen, मैंने प्रिंट वैल्यू की है। जो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तब हमें ग्रुप नेम है वो मंथ नहीं लिखना है, मुझे जो भी सिंबल है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे सिंबल्स हैं उनकी वैल्यूज देखनी है। ओके, सो मैं मुझे यहाँ पे जनवरी सिंबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो वैल्यू ऑफ जनवरी सिंबल इज समथिंग परसेंटेज डी, क्योंकि वो इंटीजर में है, मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है तो वो 0 से इंटीजर स्टार्ट करेगा और खत्म करेगा दिसंबर पे। ओके, वॉट एवर इट्स वैल्यू इज। सो आई जस्ट क्विकली कंपाइल दिस। ओके, it's good, no errors, no warning, and I'll just quickly run it. As you can see, value of January symbol is 0। और अगर मुझे दिसंबर सिंबल की रन करनी है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जनवरी की जगह पे सिंपली दिसंबर ट्राई करता हूँ और इस जनवरी की जगह भी मैं क्या करूंगा?
दिसंबर कर दूंगा। बट अब मैं और एक चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल जनवरी की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दिसंबर की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी, 12 आएगी। I'll compile it and I'll run it. ओके, as you can see दिसंबर की वैल्यू 12 है। मैं इसको मैन्युअल वैल्यू पे दे सकता हूँ। दिसंबर की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ मैन्युअली, 99। ओके, एंड इफ आई जस्ट कंपाइल एंड रन इट, तो एज यू कैन सी दिसंबर की वैल्यू 99। आप मैन्युअल वैल्यू खुद भी दे सकते हैं। ओके, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला, और सितंबर को एक मैन्युअल वैल्यू देता हूँ, सितंबर को मैं मैन्युअल वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 77। अक्टूबर की होगी 78, नवंबर की 79 और दिसंबर की 80। So let's check if December's value is 80 or not. Okay, I'll run it again. Yeah, December's value is 80. Right? So previous से एक ज़्यादा होती जाएगी अगर आप कोई भी मैन्युअल वैल्यू देना चाहते हैं। अगर मैन्युअल वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होगी, आपने फर्स्ट वैल्यू दी है वहाँ से स्टार्ट होकर कहीं तक भी जा सकती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। ये हैश डिफाइन वाली वैल्यूज भी अलाउड है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेके सारी वैल्यू डिफाइन है। अगर आपको वो भी ट्राई करना है तो विल जस्ट ट्राई इट। ओके, वैल्यू ऑफ दिसंबर नहीं, वैल्यू ऑफ लेट्स से वेडनेसडे सिंबल नहीं, वैल्यू ऑफ वेडनेसडे सिंबॉलिक कांस्टेंट, इट इज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी परसेंटेज डी में ही है। ओके, एंड आई जस्ट सिंपली यूज वेडनेसडे WED। सो if we run this and compile it, no error, we'll run it। ओके, सिंबॉलिक कांस्टेंट इज 3, वेडनेसडे की वैल्यू क्या है 3। हमने न्यू लाइन सिंबल यूज नहीं किया इसलिए नई लाइन में नहीं आ रहे हैं। विल जस्ट क्विकली ऐड न्यू लाइन सिंबल /n। ओके, अल्टर F9 एंड कंट्रोल F9। फाइन, सो लुक्स गुड। ओके, सो इस तरीके से हम सिंबॉलिक कांस्टेंट की वैल्यू और एनिमेटेड डेटा की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। फाइन, यू कैन यूज डिफरेंट एग्जांपल्स। दूसरे एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि ओके, एनिमेटेड डेटा टाइप status of anyone on WhatsApp or on any social media site to be precise। दो स्टेटस है, ऑनलाइन कॉमा ऑफलाइन। अब इसके साथ आप वैल्यू जो भी आपको अच्छा लगे असाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होगी, 0 और 1। ऑनलाइन के लिए 0 होगा, ऑफलाइन के लिए 1 होगा। इसके साथ आप कैरेक्टर भी असाइन कर सकते हैं। क्या कैरेक्टर में असाइन कर रहा हूँ, ऑनलाइन को कैपिटल O दे रहा हूँ और ऑफलाइन को कौन सा दे रहा हूँ, ऑब्वियसली कैपिटल OF। ओके, और F ओनली। जो कैरेक्टर है तो F है, पूरा देना है तो आपको स्ट्रिंग के बीच में देना पड़ेगा। OFF देना है आपको, OFF, तो आपको किसके बीच में देना पड़ेगा, स्ट्रिंग के बीच में देना पड़ेगा। ये भी अलाउड है। ओके, सो हम इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट एफ, ओके, इसको हम कहेंगे ऑनलाइन स्टेटस। ओके, ऑनलाइन स्टेटस कैसे प्रिंट करेंगे, %C, और ऑनलाइन स्टेटस का सिंबल का नाम क्या है, ऑब्वियसली it is online। okay, so I'll just put alter F9। there's an error, constant expression required। okay, so we have dealt with an error। earlier we had used off string there, like something like this, to be precise OFF, which is not allowed here. We have to use constant expression। okay, so I'll just simply use F as a character or integer or float। so you have to use similar data type for a similar group of symbols। okay, so हमारा group of symbols क्या है, यहाँ पे status है। similarly आप काफी सारे experiment कर सकते हो एनिमेटेड डेटा टाइप के साथ। ओके, बेसिक एग्जांपल क्या था, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ हैश डिफाइन सिंबल्स। ओके, हमारे सिंबॉलिक कांस्टेंट का ये एक्सटेंशन है। ज्यादा सिंबॉलिक कांस्टेंट हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, मूविंग बैक टू पीपीटी। फाइन, सो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, कांस्टेंट। फाइन, सो
सिंबॉलिक कांस्टेंट उसका एक्सटेंशन हो गया। अब हमें यूज करना है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो वेरिएबल की तरह ही डिफाइन होता है। जैसे कि हम इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू 100 डिफाइन करते हैं, तो हम इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू 100 लिखना हमें पता है कि कैसे एक इंटीजर को डिफाइन करते हैं। तो उसको अगर हमें कांस्टेंट बनाना है तो उसके आगे सिर्फ एक कीवर्ड लगाना है कॉन्स्ट। ओके, कीवर्ड लगाना है कॉन्स्ट। वो सिमिलर ही है किन चीजों की तरह, सिंबॉलिक कांस्टेंट की तरह या फिर एन्यूमरेटेड डी टाइप की तरह, दोनों की तरह सेम है। उसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। ओके, अगर हम अटेम्प्ट करेंगे उनकी वैल्यू चेंज करने का तो भी हमें क्या आएगा, एरर आएगा। और अगर हम कांस्टेंट को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, कंपाइलर क्या ले लेगा, 0 लेगा। ओके, अगर वो इंटीजर कांस्टेंट है तो भी, फ्लोट कांस्टेंट है तो भी, राइट, उनकी वैल्यू डेटा कंपाइलर क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। So we'll just see an example of const, right? Moving back to our program. So यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर मैक्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, जनरली 100 होते हैं। तो मैं 100 को मैक्स ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमें उसको कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आगे कौन सा कीवर्ड रखेंगे, कॉन्स्ट, बाय मिस्टेक CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कीवर्ड है वो वाइट कैरेक्टर्स में, वाइट फॉन्ट में रिप्रेजेंट होता है, कॉन्स्ट इंटीजर मैक्स 100। ओके, सो आप जैसे भी कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो पहले आप उसको डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं फ्लोट डिफाइन कर रहा हूँ तो फ्लोट पाई ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है, तो लेट्स डिफाइन द वेरिएबल कॉल्ड ई। एक ई नाम का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, उसको मैं ई वेरिएबल कह देता हूँ। ई वेरिएबल की वैल्यू कितनी होती है, अराउंड 2.71। इट्स मैथमेटिकल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अराउंड 2.71 होती है। उसको भी अगर मुझे कांस्टेंट बनाना है तो मैं आगे क्या लगा सकता हूँ, कांस्ट कीवर्ड लगा सकता हूँ, राइट। ये चीजें सिंबॉलिक कांस्टेंट से कैसे डिफरेंट है हम बात कर चुके हैं। ये मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन होता है, मेमोरी में जगह रोकी जाती है इनसे। ओके, बट सिंबॉलिक कांस्टेंट मेमोरी में जगह नहीं रोकता है। बट सेम चीज क्या है कि दोनों को ओवर द टाइम, ओवर द प्रोग्राम हम उनको, उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो मैक्स की वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है तो आई जस्ट क्विकली टाइप printf स्टेटमेंट। ओके, printf max is equals to %d और कॉमा, उसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है, वेरिएबल नेम क्या है, मैक्स। सिमिलरली हम फ्लोट की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, eval, you can check that at home, I'm not printing here. Okay, alter f9, there are one warning, e variable is value assigned that is never used। हमने e variable को प्रिंट नहीं किया, ये एरर है। ओके, नो प्रॉब्लम, हमने मैक्स की वैल्यू प्रिंट कर ली 100, उसके आगे हमने न्यू लाइन नहीं किया इसलिए थोड़ा रिप्रेजेंटेशन एरर है। I'll just quickly put a new line, quickly run it again। ओके, सो मैक्स की वैल्यू क्या है, 100 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो व्हाट वी वांटेड टू सी वाज कि मैक्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। सो हम यहाँ पे मैक्स की वैल्यू को चेंज करने का ट्राई करते हैं। मैक्स की वैल्यू को हम 200 कर देते हैं। ओके, एंड आई जस्ट क्विकली ट्राई टू रन इट। एज यू कैन सी इट इज शोइंग वन एरर, कैनॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मैक्स हमारा कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है इसीलिए हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, थ्रू आउट द प्रोग्राम हमें उसे सेम रखना पड़ता है। ओके, सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट। इस तरीके से आप कांस्टेंट वैल्यू यूज कर सकते हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। जो वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स को हमें प्रोग्राम में चेंज नहीं होने देना पड़ता है, उसको हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इन कांस्टेंट हैंडलिंग का पूरा एक चार्ट है या फिर हम कह सकते हैं कंपैरिजन है। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस की तरह काम करते हैं। ये भी फाइंड एंड रिप्लेस की तरह काम करते हैं, ये सिर्फ एक्सटेंशन है सिंबॉलिक कांस्टेंट का। ओके, ये एक्चुअली वेरिएबल्स को रिजेंबल करते हैं। ओके, पर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इन दोनों को कौन मैनेज करता है, प्री प्रोसेसर मैनेज करता है क्योंकि वो वॉइड मेन से पहले लेके जाते हैं। इनको कौन मैनेज करता है, कंपाइलर मैनेज करता है क्योंकि वो वॉइड मेन के अंदर लेके जाते हैं। इनका मेमोरी स्टोरेज नहीं है, ऑब्वियसली इनका मेमोरी स्टोरेज नहीं है। ये बोथ बेसिकली सेम है, दिस बोथ डेटा टाइप्स आर बेसिकली सेम, फाइन। सिंबॉलिक कांस्टेंट और एन्यूमरेटेड डेटा टाइप दोनों सेम है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ये मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, इन तीनों को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ये तो ऑब्वियसली तीनों के लिए सेम है। डिफॉल्ट वैल्यू इनकी नहीं होती है, हमें सिंबल और वैल्यू देनी पड़ती है। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है, और ऑब्वियसली कांस्टेंट की डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तीनों के एक एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं प्रोग्राम में। ओके, सो प्रैक्टिस दिस एट होम। ऑब्वियसली वी आर रैपिंग अप दिस चैप्टर, we'll see you in next chapter। Okay, thank you।